میں چاہتا ہوں کہ آپ ساہوکاروں اور منشی جی کے گھر کے لوگوں پر نظر رکھیں۔ میں نے ایک ایک کر کے دونوں کی طرف دیکھا اور کہا، فرید تم روپ خان اور اس کے تمام بھائیوں پر نظر رکھو گے اور سنی تم منشی کے گھر والوں پر نظر رکھو گے۔ بھائی ساہوکار کی تو سمجھ آتی ہے، فرید نے سوچتے ہوئے کہا، لیکن منشی کے گھر والوں پر نظر رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ضرورت نہ ہوتی، میں نے کہا، تو میں تم سے کیوں کہتا کہ ان پر نظر رکھو؟ حیرت کی بات ہے بھائی، سنی نے کہا۔ آخر بات کیا ہے فرحان؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ تمہیں منشی کے گھر والوں پر شک ہے کہ وہ ساہوکاروں سے رابطے میں ہیں؟ دیکھو، اگر تم ایسا سوچتے ہو تو سمجھ لو کہ تم غلط سوچ رہے ہو، کیونکہ ہم نے کبھی اس کے گھر والوں کو ساہوکاروں کے کسی فرد سے ملتے نہیں دیکھا۔ زیادہ ہوشیار مت بنو، میں نے سختی سے کہا۔ جتنا کہا جائے اتنا کرو۔ تمہارا کام صرف یہ ہے کہ منشی کے گھر والوں پر نظر رکھو اور دیکھو کہ کون اس کے گھر آتا ہے یا اس سے ملتا ہے، اور وہ خود کس سے ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، سنی نے کہا، اگر تم یہی چاہتے ہو تو میں آج سے ہی منشی کے گھر اور اس کے گھر والوں پر نظر رکھوں گا۔ شاندار۔ یہ کہتے ہوئے میں نے فرید کی طرف دیکھا۔ آج میں روپ خان کی بہن فرحت سے ملنے مزار جا رہا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم دیکھو کہ روپ خان فرحت کا پیچھا تو نہیں کرتا۔ اگر وہ آئے تو تم مجھے فوراً بتاؤ گے۔ لگتا ہے تمہارا فرحت کو جہاز پر چڑھانے کا ارادہ ہے، فرید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ غلط ہے بھائی، آپ اس کے ساتھ سیر کریں گے اور یہاں ہم 4 مہینے سے صرف ہاتھ چلا کر جی رہے ہیں۔ تم کمینے ہی رہو گے، میں اس کے ساتھ کچھ نہیں کروں گا، میں نے آنکھیں گھما کر کہا۔ میرے لیے اس سے ملنا بہت ضروری ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں وقتی طور پر روپ خان پر نظر رکھو۔ اس سے معلوم ہو گیا ہے کہ میرا اس کی بہن کے ساتھ افیئر ہے۔ اب جب میں واپس آیا ہوں تو وہ اپنی بہن پر نظر رکھے ہوئے ہوں گے۔ سنی نے ہنستے ہوئے کہا، اس کی یہ سوچ کر جل رہی ہوگی کہ تم نے اس کی بہن کا حق ادا کر دیا ہوگا۔ اس کی جلتی ہے تو جلتی رہے، میں نے اتفاق سے کہا، لیکن فی الحال میں اسے تصادم نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ اب ساہوکاروں نے ہمارے ساتھ تعلقات بہتر کر لیے ہیں، اس لیے میں خود کسی قسم کی لڑائی شروع نہیں کرنا چاہتا۔ اگر ان کی طرف سے کوئی لڑائی ہوئی تو میں ان کو ختم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے معلوم ہوا کہ تم نے گلریز کا ہاتھ توڑ دیا ہے، فرید نے کہا۔ افسوس، اگر ہم دونوں اس وقت وہاں ہوتے تو ہم دونوں کو بھی ہاتھ صاف کرنے کا موقع مل جاتا۔ وقت آئے گا ہاتھ صاف کرنے کا بھی، میں نے کہا، لیکن اس وقت جو ضروری ہے وہ کرو۔ اب تم دونوں جاؤ اور روپ خان پر نظر رکھو، میں بھی مزار کی طرف جا رہا ہوں۔ فرید اور سنی میرے کہنے پر گئے اور میں نے بھی مزار کی طرف جانے کے لیے رخ کیا۔ آج مراد چچا کا بھی 10واں ہے، اس لیے مجھے بھی وقت پر مراد چچا کے گھر پہنچنا تھا۔ خیر میں تیز قدموں سے مزار کی طرف بڑھ رہا تھا۔ فرید اور سنی بھی میرے جیسے نڈر اور بدتمیز تھے۔ صبح کے 9 بج چکے تھے جب میں مزار پہنچا۔ گاؤں کے بہت کم لوگ مزار پر آئے تھے۔ میں نے بھی پہلے بابا شاہ کے مزار پر حاضری دی اور پھر مزار کی پچھلی طرف چلا گیا۔ پیچھے بہت سے درخت اور پودے تھے، جہاں میں ایک درخت کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور فرحت کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ میں جب بھی فرحت سے مزار میں ملتا تھا تو یہاں ملتا تھا، کیونکہ لوگ یہاں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وقفے وقفے سے میں درخت سے سر نکال کر مزار کی طرف دیکھتا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے انتظار کے بعد میں نے فرحت کو آتے دیکھا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میرے اندر جذبات سر اٹھانے لگے، جنہیں میں نے بے دردی سے دبانے کی کوشش کی۔ وہ کچھ ہی دیر میں میرے پاس آ گئی۔ آج 4.5 ماہ بعد میں فرحت جیسی خوبصورت بلا کو اپنے اتنے قریب دیکھ رہا تھا۔ وہ گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح چہرے پر
हल्की सी मुस्कुराहट लिए चंद लम्हे मेरी तरफ देखती रही और फिर इसकी आंखें नीचे झुक गईं। न जाने वो क्या सोच रही थी। वो शर्मा रही थी जिसकी वजह से इसका गोरा चेहरा कदरे सुर्ख हो गया था। मैंने चंद लम्हे खामोशी से फरहत की शक्ल की खूबसूरती को देखा और फिर आगे बढ़कर इसका चेहरा अपनी हथेलियों में ले लिया। जैसे मैंने इसे हाथ लगाया वो कांप गई और इसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ देखा। तरस गया था तुम्हारे दीदार को, मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। इन 4.5 महीनों में मैं तुम और भी खूबसूरत हो गई हो। तुम्हारा ये बदन पहले से ज़्यादा भरा हुआ लगता है। मैंने सोचा था कि शायद मेरी याद में तुम्हारी हालत ख़राब हो गई होगी। शुरू में 2 माह मेरी हालत ख़राब रही जनाब, फरहत ने अपनी कड़कती हुई आवाज़ में कहा। लेकिन फिर मैंने ये सोचकर अपने आप को समझा दिया कि मेरी हालत देखकर शायद मेरे घर वालों को मेरी हालत की असली वजह मालूम हो जाए। क्या आप जानते हैं कि मैंने कितने मुश्किल से अपने आप को समझाया? हाँ, मैं समझ सकता हूँ, मैंने इसका चेहरा अपनी हथेलियों में पकड़ते हुए कहा। लेकिन क्या तुमको अंदाज़ा है कि मैं 4 माह तक कितनी तकलीफ़ में रहा? हम अपने दिल की तेज से प्यार करते हैं, हम इसे दूर से भी महसूस करते हैं। फरहत ने कहा, मेरे दिल पर हाथ रख कर देखो, बताएगा कि किसके नाम पर धड़कता है। मेरे इनकार के बाद भी तुमने मेरे बारे में ऐसे ख्यालात अपने दिल से नहीं निकाले। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि हम दोनों कभी साथ नहीं हो सकते, फिर ऐसी ख्वाहिश दिल में रखने का क्या फ़ायदा? अब तक मैं भी यही समझती थी कि तुम मेरी किस्मत में नहीं हो सकते। फरहत ने मेरी आंखों में देखते हुए मासूमियत से कहा, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि तुम मेरा मुकद्दर हो। हाँ फरहान, अब तो मेरे घर वालों ने दादा मलिक से रिश्ता भी ठीक कर लिया है। अब हम एक हो सकते हैं, हमारे एक होने में किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। तुम्हारा क्या ख्याल है फरहत? मैंने इसका चेहरा अपनी हथेलियों से छुड़ाया और कहा, तुम्हारे घर वालों ने हमसे ताल्लुकात बेहतर कर लिए हैं, तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या मतलब? फरहत ने आंखें मौंद कर मेरी तरफ देखा। तो मैंने कहा, इसका मतलब है कि इसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी। तारीख गवाह है कि हम मलकों और साहूकारों के दरमियान कभी अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। हमारे आबा व अजदाद के वक्त से ही दोनों ख़ानदानों में अदावत और दुश्मनी रही है। सवाल ये पैदा होता है कि अब ऐसी कौन सी ख़ास बात है जिसके लिए खुद ही ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए तुम्हारे घर वालों ने पहल की? आसपास के देहात आजकल यही सोचते हैं कि साहूकारों ने दादा मलिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की पहल क्यों की होगी। मैं मानती हूँ कि शुरू से इन दोनों ख़ानदानों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। फरहत ने कहा, लेकिन तुम ये भी जानते हो कि दुनिया में कोई भी चीज़ हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अगर कल हमारा कोई दुश्मन था तो यकीनन एक दिन वो हमारा दोस्त भी बन जाएगा। तब्दीली इस दुनिया का असूल है फरहान। हमें इस बात पर खुश होना चाहिए कि 2 ख़ानदानों में रंजिश या दुश्मनी अब ख़त्म हो गई है और अब हम एक दूसरे के साथ हैं। मैं मानती हूँ कि जब ऐसी बातें हों तो सबके ज़हनों में ये सवाल पैदा होता है, लेकिन अगर आज दोनों ख़ानदान एक हो गए हैं तो फिर ऐसी वजह सोचने की क्या ज़रूरत है। मेरा मतलब फरहत कहने का ये नहीं कि मैं दोनों ख़ानदानों के दोबारा इत्तेहाद से खुश नहीं हूँ। मैंने गहरा सांस लिया और कहा कि दर हकीकत हम भी इससे बहुत खुश हैं, लेकिन हमें इन सवालात के जवाबात भी मालूम होने चाहिए जो इस वाक़े की वजह से हमारे जहन में पैदा होते हैं। तो आप किस किस्म के जवाबात जानने की तवक्को करते हैं? फरहत ने कहा, क्या आपको लगता है कि मेरे घर वालों के जहन में कुछ है जिसके लिए इन्होंने दादा मलिक के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर किए हैं? मेरे सोचने से क्या होता है फरहत? मैंने कहा, इस किस्म की सोच गांव के तकरीबन हर शख्स के जहन में होती है।
मेरा गांव वालों से कोई ताल्लुक नहीं फरहान। फरहत ने मेरी तरफ देखा और कहा, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि मेरे घर वालों के ऐसा करने के बारे में आपका क्या ख्याल है। सबकी तरह मैं भी ये सोचने पर मजबूर हूँ कि साहूकारों के ऐसा करने के पीछे ज़रूर कोई वजह होगी और मेरे पास ऐसा सोचने की वजह है। मैंने फरहत की आंखों में देखते हुए कहा, और इसकी वजह क्या है? फरहत ने गौर से मेरी तरफ देखा। जैसा कि आप भी जानते हैं, मेरे और आपके भाइयों के दरमियान हमेशा दुश्मनी रही है। मैंने कहा, जिसका खमियाजा हमेशा आपके भाइयों को मेरी वजह से भुगतना पड़ा। मैंने इस दिन गुलरेज का बाजू तोड़ दिया था। अब सवाल ये है कि आपके घर वालों ने मेरे ऐसा करने पर एतराज़ क्यों नहीं किया और दादा मलिक से इंसाफ का मुतालबा नहीं किया? क्या तुम सिर्फ इस छोटी सी बात के लिए सोच रहे हो कि दादा मलिक के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करने के पीछे कोई ऐसी वजह हो सकती है? फरहत के चेहरे पर तीखे तासुरात थे जो मेरे लिए हैरत का बायस थे। जबकि इसने बात जारी रखते हुए कहा, जबकि सबके बाद भी अगर मेरे घर वालों ने सब कुछ भूलकर दादा मलिक के साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करने का सोचा तो उन्होंने क्या गलत किया? मैंने कुछ गलत नहीं किया और मैं इससे मुत्तफिक हूँ। मैंने कहा, लेकिन सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके अलावा भी कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें जानकर आप शायद ये समझने लगेंगे कि मैं आपके घर वालों पर बिला ज़रूरत उंगलियां नहीं उठा रहा हूँ। और फरहान, क्या है वो बातें? फरहत ने कहा, मुझे भी बताओ मेरे घर वालों ने क्या किया है जिसके लिए तुम ये सब कह रहे हो। मेरे पास इस वक्त कोई सबूत नहीं है फरहत। मैंने गहरा सांस लिया, लेकिन मेरा दिल कहता है कि मेरा शक बेवजह नहीं है। जिससे मेरे पास सबूत होगा मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। इससे पहले, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारा भाई मेरे और तुम्हारे रिश्ते के बारे में सब कुछ जानता है? आप क्या कह रहे हैं? फरहत मेरी ये बात सुनकर चौंक गई। इसने अपने चेहरे पर हैरत के तासुरात के साथ कहा, मेरे भाई को कैसे पता चला और आप कैसे कह सकते हैं कि वो सब कुछ जानता है? इसके मुंह से ही पता चला। मैंने कहा, तुम्हारा भाई रूप खान इन दोनों मुझसे बदला लेने के लिए ऐसी बहुत सी हरकतें कर रहा है जिसका मैंने सोचा भी नहीं था। वो क्या कर रहा है? फरहत ने हैरत से पूछा। क्या तुम सोच सकते हो कि तुम्हारे भाई का ताल्लुक मुंशी जी की बहू किरण से हो सकता है? मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।